Guys, welcome you all. Let's start with the new topic here in our logic. Let's see some standard results which we have already studied in this chapter. कुछ चीज़ें हैं हमने जो पढ़ी है वो चीज़ों को हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो कि आगे चल के हमें जो एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे, जो सम्स हम सॉल्व करेंगे उसमें हमें काम आएंगी। सबसे पहले हमने पढ़ी आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी है, जो रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं, उसको हमें एक बार रिवाइज करना है। इसीलिए पहला लॉ ले रहे हैं हम लोग, आइडेम्पोटेंट लॉ। फर्स्ट केस, P join P, it is equivalent with P, and second case, P meet P is also equivalent with P। देखिए भाई, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। अगर हम याद करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में हमने पढ़ा था A यूनियन A इट इज A इटसेल्फ। अगर आपको याद होगा, A यूनियन A इज A एंड A इंटरसेक्शन A इज ऑल्सो इक्वल्स टू A, हमने सेट्स में पढ़ा था। बस वही रूल है, सेट की जगह पे हमारा स्टेटमेंट आ गया, यूनियन के जगह पे हमारा और आ गया। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो सेम रूल्स है, P join P, that means P or P is equivalent with P and P and P is also equivalent with P. That is our idempotent law. Second one, commutative law. वन बाय वन हम अभी सभी लॉज का स्टडी करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेशन हमने पढ़ा था भाई। कहाँ पढ़ा था कम्यूटेशन? सेट्स में ही पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन में हमने देखा था A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। उसके बाद देखा था A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। नाउ commutative law in logic is also nothing more than this, only we have to change the notations there. So how we write the commutative law? First commutative law, it is P join Q is equivalent with Q join P, or you can say P or Q is equivalent with Q or P. And second case, P and Q is equivalent with Q and P. Nothing other than this, just we have to replace the sets and notation of union by or and intersection by and. That is called as the commutation, because when we change the sequence of a statement, nothing changes there in the logical statement pattern. That is the commutative law. After that, associative law. Associative law. So if we see associative law, first case of associative law is P join Q join R, means P or Q or R is equivalent with P or Q or R is equivalent with P or Q or R. And second case of this is P and Q and R is equivalent with P and Q and R, that is equivalent with P and Q and R. So these are the associative laws. If we take OR, disjunction of Q or R with P, that is equivalent with disjunction of P or Q or R, or we can say directly P or Q or R. Similar case for the conjunction also, that is associative law. अभी देखना है भाई हमें distributive laws. Distributive laws, or we can say distributive properties also. Distributive laws हमने सेट्स में भी पढ़े थे ना, अगर आपको याद होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, it is A union B intersection with A union C, and second one was A intersection B union C is equivalent with A intersection B union with A intersection। ये तो सेट्स का था, है ना। फिलहाल हम तो पढ़ रहे हैं लॉजिक। अभी जस्ट हमें क्या करना है, instead of notations of sets we have to replace it by statements, and notations of union and intersection we have to replace by conjunction and disjunction. Directly we can say the distributive laws, how these are defined. First distributive law, that is P join Q meet R
that is P join Q meet with P join R, means P or Q and R is equivalent with P or Q and P or R. And second law, P and Q or R is equivalent with P and Q or P and R. Just if we compare, the laws are same, just the difference of notations is there again. So हमें याद रखना है, हमने जो पीछे पढ़ा है, मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था आपको, जो मैथमेटिक्स हम आज तक पढ़ते आए हैं वही हमें रिवाइज करना है। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होना ही है भाई, नया नया टॉपिक आएगा, उसका नोटेशंस अलग रहेगा, थ्योरी सेम रहेगा, नोटेशंस अलग आएंगे, तो हमें यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना है। जो हमने पढ़ा है वही हमें प्रॉपरली देखना है। खाली रिजल्ट्स का अगर कंपैरिजन करेंगे तो सेम रिजल्ट्स हमें पता लगेंगे कि नहीं, हमने जो पढ़ा है वही यहाँ पे दिया हुआ है, नथिंग अदर देन दिस। सो पीछे जो रिजल्ट्स पढ़ के आए हैं वो रिजल्ट्स को हमको एक बार याद करना है। वो रिजल्ट्स को सामने रखते हुए अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें इजीली वो सब रिजल्ट्स अच्छे से याद आएंगे। उसके बाद हमने पढ़े थे डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स laws. Which are the De Morgan's laws? We have studied already. First De Morgan's law was negation of conjunction. It is disjunction of negations. Negation of conjunction is disjunction of negation. Second law, negation of disjunction is conjunction of negations of P and Q. That are the De Morgan's laws. उसके बाद हमने आइडेंटिटी लॉज पढ़ने हैं, बहुत इजी है। देखिए आइडेंटिटी लॉज, आइडेंटिटी लॉज, इसमें बहुत सारे केसेस है जो हमें याद रखनी है। फर्स्ट केस P मीट ट्रू। देखिए P स्टेटमेंट है, ये ट्रू जो है ये ट्रूथ वैल्यू है। इफ in any case if we get P any statement and true, अभी हमें पता है दोनों ट्रू आएंगे तो ट्रू आएगा, इसका मतलब इसका नेचर जो है वो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P पे डिपेंड है। अगर P ट्रू आएगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, P फॉल्स आएगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है, जो P का वैल्यू आएगा उस पे डिपेंड है। P ट्रू आता है तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा, P फॉल्स आता है तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो P पे डिपेंड है, तो P आएगा। सेकेंड केस P और ट्रू, नाउ इट इज P मे बी ट्रू मे बी फॉल्स। ट्रू आएगा तो भी इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आने वाला है, फॉल्स आएगा तो भी ये ट्रू ही आने वाला है। सो इसका ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन P, दैट इज डायरेक्टली ट्रू। थर्ड केस P and false, what will be it now? अभी P ट्रू आएगा तो भी ये फॉल्स हो जाएगा, P फॉल्स आएगा तो भी फॉल्स हो जाएगा। इट डजंट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ P। फोर्थ केस P और फॉल्स, नाउ दैट इज डिपेंड्स ऑन P, P और फॉल्स इज P। These are the identity laws. Instead of true or false, if there are tautology and contradiction, then also we can write down the same values. Suppose like this, P and contradiction is there, sorry, P and tautology is there, directly we can take it as P. Sixth one, suppose P or tautology is there, we can write directly tautology. May possible there may be contradiction, P and contradiction if there, then we can write the truth value as contradiction. And eighth value, P or contradiction, that will be contradiction, sorry, P or contradiction, that is P itself, sorry, P or contradiction, that is P. Okay, these are the identity laws. Now next we study complement law. Next we study complement laws. अभी complement पता है हमें। फर्स्ट केस P join negation P, P or negation P, that is tautology. Second case P and negation P,
P and negation P, that is contradiction. So there are two complement laws, P or negation P, that is tautology, or true we can say, or we can say true. इसको tautology भी लिख सकते हैं, contradiction लिख सकते हैं, और first case P or negation P, that is true, and second case we can say P and negation P, that is false. You can write tautology, you can write contradiction also, because if this is true then no problem, but if we write tautology, why this has been written as tautology? In the truth tables of tautology and contradiction with contingency, we have already seen P join negation P, that was the tautology, because all truth values are true there in the truth table of P or negation P. हमने पहले भी देखा है, इसका ट्रूथ टेबल अगर हम फाइंड करेंगे तो उसमें सभी वैल्यूज ट्रू आएंगी. अगर सब वैल्यू ट्रू आती है तो हमें पता है इफ अ ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट्स ऑल वैल्यूज आर ट्रू, देन दैट इज टॉटोलॉजी. सो वी हैव रिटन हियर टॉटोलॉजी. यू कैन राइट ट्रू ऑल्सो, यू कैन राइट टॉटोलॉजी ऑल्सो, नो डाउट. ओके, सो हियर वी रिमेंबर both results are true. Okay, now after complement law we study absorption law. We study absorption law. Absorption laws. Absorption. Sorry, P. Absorption law. First case, P join or P and Q is equivalent with P, and second case P and P or Q is again equivalent with P. Again equivalent with P. These are called as the absorption laws. So next one, conditional law. Conditional law. Conditional नाम से ही पता चलता है conditional law. Conditional law जो है, first case we know that it is conditional statement and truth value of this is negation P or Q. So इसका negation भी अगर लिख देंगे तो negation P implies Q, it is P and negation Q. negation भी लिख देते हैं तुरंत. So it is conditional law. And finally biconditional law is there. Biconditional law, इसकी 2-3 केसेस हमें याद रखनी है. बाइकंडीशनल लॉ, अभी देखिए भाई, बाइकंडीशनैलिटी जो है हम देख सकते हैं, हमें पता है P डबल इम्प्लीकेशन Q, इट इज इक्विवेलेंट विथ P इम्प्लाइज Q मीट विथ मीन्स एंड Q इम्प्लाइज P. इसी रूल को हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q एंड P. ओके, इसी को लिख सकते हैं इस तरीके से. हमने पीछे देखा है ट्रूथ टेबल्स में, हमने ट्रूथ टेबल्स भी बनाए थे. उसका निगेशन अगर हम देखेंगे, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q, दैट विल बी यस निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q और निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P. तो ये क्या हो जाएगा, इसका निगेशन हमें पता है क्या होता है, P एंड निगेशन Q और Q and negation P. That is all from the standard results. हमने ये 10 तरीके के लॉज अलग अलग टॉपिक्स में पढ़े हुए हैं. जो हमने पढ़ा है वही सामने लिखा हुआ है. idempotent laws और idempotent laws, pronunciation depends on us how we pronounce it. So P join P और P is P, P and P is also P. उसके बाद commutative laws, उसका sequence अगर चेंज कर देंगे ट्रूथ वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा. associative laws हमने सेट्स में भी पढ़ा था, similar case is there. इसका और Q और R उसको P के साथ और कर देंगे तो भी, या तो फिर P और Q उसके साथ R को और ज्वाइन कर देंगे तो भी, तो उसका वैल्यू सेम आएगा. उसी तरीके से एंड के बारे में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हमने सेट्स में पढ़े थे. सिमिलर काइंड ऑफ लॉज आर देयर, जस्ट द डिफरेंस ऑफ नोटेशन इज देयर. हमने ये भी पढ़ा था. डी मॉर्गन्स लॉ तो हमने ट्रूथ टेबल भी बना लिए हैं, ये हमने पढ़े हैं. आइडेंटिटी लॉज है. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ, P ज्वाइन नेगेशन P, ये भी हमने पढ़ा था, है ना, ये भी हमने पढ़ा था. A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट सेट्स में पढ़ा था. A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज द यूनिवर्सल सेट, दैट इज टोटोलॉजी.
एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से। एब्सॉर्प्शन लॉज हमने पढ़े हैं, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए, दैट वाज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द सेट्स आल्सो। पूरी तरीके से अगर हम थ्योरी का यहाँ पे हिसाब लेंगे तो पूरा का पूरा थ्योरी हमने पढ़ा हुआ है। जस्ट द डिफरेंस ऑफ नोटेशंस, मैं फिर से कहता हूँ एक बार, हमने ये थ्योरी पहले सबकी सब थ्योरी पढ़ी हुई है, थोड़ा सा डिफरेंस है खाली नोटेशंस में। सो हम अगर ठीक से पता करेंगे तो हमें बहुत इजी ये टॉपिक समझ में आएगा। तो अभी हमें करना क्या है, जिसके सामने मैं स्टार कर दूंगा वो सभी स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यूज, ट्रूथ टेबल्स आपको घर पे जाके फॉर्म करने हैं। जिसके सामने मैंने स्टार कर दिया, ये सब के सब ट्रूथ टेबल्स हमें घर जाके, अभी ये लॉजिकल इक्विवेलेंसेस है, ये लॉजिकल इक्विवेलेंसेस है, ये हमें घर पे एट होम वी हैव टू प्रूव ऑल दीज लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। सो जिसके सामने मैंने स्टार कर दिया है वो सभी रूल्स आपको आपके नोटबुक में प्रूव करने हैं घर पे जाके। सो 1, 2, ओके, ये सब के सब जिसके सामने मैंने स्टार कर दिया, ये आपके होमवर्क्स में आपको ट्रूथ टेबल के फॉर्म में इसको प्रूव करना है लॉजिकल इक्विवेलेंसेस को, और नोट कर लीजिए आपके नोटबुक में। अभी चलिए हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.4 यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन। अभी हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं, उसके बाद सभी के सभी कनेक्टिव्स के निगेशंस हमने पढ़े थे, निगेशंस ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सो यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशंस, वो रूल्स का यूज़ कीजिए और ये जो स्टेटमेंट पैटर्न्स है इनके निगेशंस राइट डाउन कीजिए। अभी देखिए फर्स्ट जो दिया है हम क्या करेंगे, उसको गिवन, उसको यस बोलेंगे। इट इज़ निगेशन P implies Q, इसको S बोल दिया। सो देयरफॉर S is given by, we know that P implies Q, it is negation of negation P join Q। हमें पता है, क्या पता है, P implies Q is equivalent with negation P join Q। हमने अभी रूल्स में पढ़ा हुआ है, कंडीशनल लॉ, सेकेंड लास्ट लॉ अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, सेकेंड लास्ट लॉ उसमें दिया हुआ है P implies Q is negation of first statement or Q। So negation P implies Q, negation of first statement, so negation of negation P or Q, and that is equivalent with P or Q। negation of negation P is the statement P itself, negation of negation P, it is the statement itself, हमें पता है। सो ये हो गया S का वैल्यू, ये क्या हो गया, S का वैल्यू। लेकिन हमें क्या करना है, इसका निगेशन लिखना है, एंड देयरफॉर the negation of S is negation of P or Q by using De Morgan's law। we can write it is negation P or negation Q by De Morgan's law। ठीक है, लिख दिया De Morgan's law। यहाँ पे हमने वो कैसा लिखा था, negation of negation P is P, इस तरीके से लिखा था। ओके, सो हो गया इसका निगेशन। अभी सेकेंड एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, सेकेंड वन, P एंड निगेशन Q। सेकेंड वन, P एंड निगेशन Q। चलिए भाई, गिवन द केस, गिवन द स्टेटमेंट पैटर्न S इज P and negation Q, and therefore negation of S is negation of P and negation Q। So it is given by, again by using negation of conjunction, so it is disjunction of negations, again by how we use, what we used De Morgan's law here, that is equivalent with negation P or negation of negation, it is Q itself। Okay, so what we have used here, we have used the law negation of negation Q, it is Q itself। Okay, what we have done, we are just finding the negations of the compound statements, and S is the Q1 statement, we have to take the negation। So negation of this statement, now it is negation of conjunction। conjunction का negation तो disjunction of negations होता है। So
negation of this first statement P and negation of this second statement negation Q. Okay, so negation of negation is again that is Q. So we have written the value of negation of Q, that is Q itself. So negation P or negation or Q itself, that is the negation of the given compound statement. Okay, third one, third example we take, P implies P join negation Q. Third one, P implies P और negation Q. इसका negation लिखना है हमें using rules of negations. So given S is given as P implies P or negation Q. So what we can write as S, how we write S here, it is negation of P or negation Q. Okay, because हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है P implies Q is negation P join Q. याद रखना है भाई, हर एक रूल का यूज हर एक स्टेप में होगा. सो जहाँ पे हमने यूज किया है, जो रूल हमने यूज किया है उसको वहाँ पे मेंशन करना है. क्या यूज किया है यहाँ पे, P implies Q, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, आखिर है तो स्टेटमेंट ही. सो ये कंपाउंड स्टेटमेंट था. सो P implies इसको Q मान लिया तो वो निगेशन P और Q हो जाएगा. सो हमने यूज कर दिया P implies Q, कंडीशनल लॉ. सो इसको याद रखना है हमें, कंडीशनल लॉ इज निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट. एंड देयरफॉर इसका निगेशन लिखना है, निगेशन ऑफ S इज गिवन बाय negation of negation P or P or negation Q. Just what we have done, we have just taken the negation on the both sides of the given statement. So negation of S is, अभी negation of disjunction है भाई, डी मॉर्गन्स लॉ अगर यूज करेंगे तो negation of disjunction it is conjunction of negation. So इसका negation लेना पड़ेगा. So negation of negation P instead of disjunction we take conjunction, negation of the second statement, negation of P or negation Q. What we have used? We have used the De Morgan's law. We have used the De Morgan's law. That is equivalent with negation of negation P. It is P and again negation of conjunction, disjunction. So it is negation P and negation of negation Q. Again हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, यहाँ पे फिर से बाय डी मॉर्गन्स लॉ. हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर दिया भाई. एक एक स्टेप, हर एक स्टेप में हमें मेंशन करना है वहाँ पे हमने क्या यूज किया है, बिकॉज वी आर राइटिंग द निगेशंस यूजिंग द रूल्स. सो हमने ये रूल्स यूज कर दिए. सो जो स्टेप में रूल हमने यूज कर दिया तो उसके सामने हमें लिखना चाहिए, बिकॉज जितने मार्क्स हमें अलॉट किए हैं ये स्टेटमेंट के लिए, निगेशन लिखने के लिए, फुल मार्क्स वी हैव टू स्कोर. हमें पढ़ना है तो ऐसा लूज नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है हर एक मार्क सिक्योर करने के लिए. 100 मार्क्स का हमारा पेपर है. आउट ऑफ 100 वी आर राइटिंग द पेपर, सॉल्विंग द पेपर फॉर 80 मार्क्स. सो आउट ऑफ 80 वी हैव टू स्कोर 80 मार्क्स. हमें 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना होगा तो इतना पर्टिकुलर तो रहना ही होगा. सो बी पर्टिकुलर, लिखते रहिए, पर्टिकुलरली सॉल्व करते रहिए, आपको 100% स्कोरिंग आएगा. ठीक है. सो P एंड निगेशन P एंड Q. ओके, निगेशन ऑफ निगेशन Q इज Q, निगेशन ऑफ निगेशन Q दैट इज Q इटसेल्फ. अभी देखिए P एंड निगेशन P एंड Q हमें पता है, हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा हुआ है, हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था. सो इसको कैसे लिख सकते हैं, P and negation P, okay, and Q, P and negation P and Q, because हमने associative law पढ़ा है. So P and negation P complement law पढ़ा था हमने, ये लिख देंगे by associative law. Okay, so that is contradiction meet with Q. By which law we have used here? We have used the complement law, by complement law. So contradiction
एंड क्यू, क्या आएगा? इसको आप कॉन्ट्रडिक्शन लिख सकते हो या तो फिर आप इसको फॉल्स लिख सकते हो, फॉल्स एंड क्यू. सो डिपेंड्स ऑन yes, false only. If q is true, that again it is false, or q is false, that also false, that is it is false. So negation of that statement is false directly. हमने क्या कर दिया? डायरेक्टली हमने सॉल्व कर दिया, डायरेक्टली हमने क्या किया? उसको सॉल्व कर दिया. ठीक है. सो दैट इज द आंसर. यू हैव टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ दिस इन योर नोटबुक्स ऑल्सो. और एक बात हमें याद रखनी है, अगर आपको यहाँ से आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, यहाँ तक भी हमने आंसर लिख दिया तो भी वो बराबर है. ठीक है. तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको पूरा मालूम है, पूरा सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे भी लिख सकते हैं फॉल्स. और अगर आपको यहाँ से आगे नहीं सॉल्व करना है, यहाँ तक ही आपने सॉल्व कर दिया तो भी इसका आंसर करेक्ट रहेगा. ठीक है. वो आपको चीज़ याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. रीराइट द स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन. अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं. विदाउट यूजिंग इफ देन व्हाट वी हैव टू डू? हमें पता है, क्या पता है? हमें पता है P implies Q इज इक्विवेलेंट विथ निगेशन P और Q. पता है हमें, कंडीशनल लॉ हमारे पास है. क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है सो नॉट P और Q होता है. पहला स्टेटमेंट P जो आएगा उसको हम निगेटिव कर देंगे और Q लिखेंगे. सो हमें यहाँ पे वही बात करनी है, इफ देन यूज नहीं करना है. सो उसको हमें अलग फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हाउ वी कैन राइट द आंसर हियर? यस, लेट. सो P इज द स्टेटमेंट, अ मैन इज अ जज. एंड व्हाट अबाउट Q? A man is honest. हमने P and Q दोनों स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए. सो वी नो दैट, what we know? We know that conditional statement is equivalent with not P or Q, and therefore P implies Q. The conditional statement can be written as yes, a man is not a judge, or not a judge, or he is honest, or he is honest. क्या कर दिया भाई हमने निगेशन P कर दिया. नॉट अ जज, जज था तो नॉट अ जज कर दिया. और Q, सो और ही इज ऑनेस्ट, और Q कर दिया. सो ये हो गया. ये जो स्टेटमेंट है इसमें अभी हमें दिख रहा है क्या? इसमें इफ देन यूज किया हुआ है तो नहीं किया हुआ है. सो हमने क्या किया? हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को एक अलग फॉर्म में लिख दिया बाय यूजिंग द कंडीशनल लॉ. सो इट इज व्हाट वी हैव टू डू. सेकेंड केस, इफ 2 इज रैशनल नंबर. सेकेंड एग्जाम्पल, इफ 2 इज rational number, then root 2 is irrational number. If 2 is rational, then root 2 is irrational. How we write again? Let P is the statement. What is P? 2 is a rational number. What about Q? Root 2 is an irrational number. It is an irrational number. Okay. So therefore we know that, क्या पता है हमें? P implies Q. It is not P or Q. It is not P or Q, and therefore P implies Q is given by yes, not P. So 2 is not rational number. 2 is not rational number, or root 2 is irrational number. Root 2 is irrational number. So क्या किया हमने यहाँ पे? फिर से निगेशन P और Q लिख दिया.
हो गया अलग फॉर्मेट। सो इसमें अभी फिर से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें भी इफ देन नहीं है। देखिए आप, है क्या इफ देन यूज किया हुआ वहां पे? नहीं है, बिकॉज हमने क्या किया, कंडीशनल स्टेटमेंट को अलग फॉर्म में लिख दिया, नॉट पी और क्यू के फॉर्म में। सो इट इज द सेकेंड वन। थर्ड एग्जाम्पल, इफ वी टेक हियर, if f of 2 equals to 0, f of 2 is equals to 0, then f of x is divisible by, then f of x is divisible by x minus 2। अगेन यहाँ पे इफ देन यूज किया हुआ है। इफ f of 2 is equals to 0, then f of x is divisible by x minus 2। आइडेंटिफाई करते हैं अभी। लेट p is the statement what f of 2 is equals to 0, q is the statement, yes it is, f of x is divisible by x minus 2। okay, so we know that, क्या पता है हमें? एक चीज तो लिखनी पड़ेगी ना हर बार, what if then is given by negation p or q। so therefore p implies q is given by, yes, f of 2 is not equals to 0, हमने यहाँ पे निगेटिव कर दिया, इक्वल्स टू 0 था तो नॉट p कर दिया, और q, yes, f of x is divisible by x minus 2, that is the question number 2। so we have to make a record of this also in your notebooks also, write down। question number 3, without using the truth tables prove that। now we are given some logical equivalences, and in these equivalences what we have to do, we have to prove these equivalences without a truth table। अब तक क्या किया था हमने? लॉजिकल इक्विवेलेंस दिया है भाई, टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स वेर देयर, वी हैव मेड ट्रूथ टेबल्स showing one column of left hand side and another column of right hand side, and directly we have make a truth table and two columns are same, then that logical equivalence is correct, that we have done already। but now what we have to do, क्या करना है अभी? ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है, बट व्हाई, हाउ? विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल्स। अभी ट्रूथ टेबल का यूज नहीं करना है, ट्रूथ टेबल का यूज नहीं करना है, इसका मतलब रूल्स ऑफ लॉजिक यूज करने हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, लेट्स टेक द LHS, लेट्स टेक द LHS, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज P डबल इम्प्लीकेशन Q। लेफ्ट हैंड साइड अगर ऑब्जर्व करेंगे बाय यूजिंग द कंडीशनल लॉ, व्हाट इट इज negation P join Q or and negation Q or P। what we have used? we have used the conditional law, by conditional law we have to justify this, what we have used we have to mention there। so we have used the conditional law, it is negation P or Q and negation Q or P। so now we are going to use the distributive law। how we use the distributive law? see here, first of all start with this negation P। so it is negation of P and negation Q or P, we have used the distributive law here, negation P and negation Q or P, okay, or Q and negation Q or P। what we have used here? we have used the distributive law, by distributive law। what we have used? we have used the distributive law। देखिए ये negation P as it is and negation Q join P or P, or Q and negation Q or P। so we have used the distributive law here। now again we have to use the distributive law to simplify this। so it is negation of P and negation Q
or negation P and P. Again we have used negation P and negation Q or negation P and P. So or here also we have to use the distributive law, Q and negation Q or Q and P. Again we have to mention we have used the distributive law. पता तो चलना चाहिए ना भाई क्या यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है पता तो चलना चाहिए ना. सो मेंशन करना ज़रूरी है, याद रखिएगा. ठीक है, negation P and negation Q और negation P and P और Q and negation Q और और Q and P कर दिया, distributive law used. So it is equivalent with here negation P and negation Q और अभी हमने पढ़ा था complement law, negation P and P that is false or you can say contradiction, or here also false or Q and P. Okay, so what we have used here in the both brackets, what we have used the complement law. We have used the complement law. ये सीक्वेंस है, याद रखिएगा. जहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दिया, राइट एट द नेक्स्ट स्टेज 100% वी हैव टू यूज द कॉम्प्लीमेंट लॉ. And when we have used the complement law, 100% on the next stage we have to use the identity law. So keep in mind distributive law, complement law and identity law, that is the particular sequence while solving the logical equivalences by using rules of logic. So ये तीनों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. पहले अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दिया तो 100% आगे जाके आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करना है. ये तय है, फाइनल है, उसमें कुछ शक ही नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दिया तो अगली स्टेज में आपको 100% कॉम्प्लीमेंट लॉ ही यूज करना है. कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर दिया 100% अगली स्टेज में, आगे आने वाली स्टेज में आपको वहां पे आइडेंटिटी लॉ ही यूज करना है. देखिए कर देते हैं ना यूज यहाँ पे. अभी इसका ट्रूथ वैल्यू जो है ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा तो ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स आएगा तो फॉल्स हो जाएगा. सो इस पे डिपेंड है. सो क्या लिखेंगे, निगेशन P एंड निगेशन Q. अभी ये गायब हो गया. कैसे गायब हुआ ये, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ यूज कर दिया और यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, आइडेंटिटी लॉ यूज किया. सो Q एंड P. सो हियर बाय आइडेंटिटी लॉ. उसके बाद इसको क्या करेंगे, P मीट Q कर देंगे. सो निगेशन P एंड निगेशन Q और P एंड Q. सो क्या किया यहाँ पे, उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया. उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, बाय कम्यूटेटिव लॉ. एंड एट द लास्ट स्टेज दैट इज इक्विवेलेंट विथ दिस वी राइट फर्स्ट, इट इज P एंड Q और negation P and negation Q. Again what we have used the commutative law. हो गया ना भाई. ये तो हमारा राइट हैंड साइड दिख रहा है हमें. सो P डबल इम्प्लीकेशन Q इट इज इक्वल्स टू, इट इज गिवन बाय P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q. हमने शुरुआत की थी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, वो हमें मिल गई राइट हैंड साइड. सो लॉजिकल इक्विवेलेंस इज प्रूव्ड. दैट इज द प्रूफ. मेक अ रिकॉर्ड ऑफ दिस इन योर नोटबुक्स ऑल्सो. Second example we take. Second one, P or Q and P or negation Q is equivalent with P. चलिए भाई इसको भी प्रूव कर डालते. लेट, और यू टेक द लेट्स टेक LHS, left hand side. What is the left hand side of this? P or Q and P or negation Q. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड. इसको अगर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे हम, देखिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है. हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है P एंड Q और R
इज इक्विवेलेंट विथ P एंड Q और P एंड R। यहाँ पे ऑब्जर्व करना है हमें, दोनों ब्रैकेट्स में P एंड कॉमन है। देखिए P एंड Q और अगेन P एंड R। इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें जो है वो कॉमन है। इसको उठाया, यहाँ पे रख दिया P एंड। सही बात है, दोनों ब्रैकेट्स में ये चीज़ कॉमन थी तो उसको उठाया यहाँ से, सीधा यहाँ पे रख दिया P एंड। अभी यहाँ पे क्या बचा है भाई, Q बचा, उसके बाद और उसके बाद R। सही बात है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे P और Q एंड R इज इक्विवेलेंट विथ P और Q एंड P और R। फिर से ऑब्जर्व कीजिए, P और Q, P और R, दोनों को उठाए, सीधा यहाँ पे लेके आए P और। सही बात है। अभी यहाँ पे क्या बचा है, Q बचा है, उसके बाद एंड बचा है, उसके बाद R बचा है। सो बहुत इजी तरीका है रिमेंबर करने का, कहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं ये याद करिए। फिर से देखिए इसको, बार बार देखिए इसको। ये जो कॉमन दिख रहा है आपको, ये उठाने का, डायरेक्टली बाहर लेके आने का, जो बचा है उसका एक ब्रैकेट कर देने का, हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फ्रॉम द रिवर्स साइड। ओके, सो दिस टेक्निक वी हैव टू यूज हियर इन द सेकेंड एग्जाम्पल। सो देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे P और कॉमन है, यहाँ पे भी P और कॉमन है, उसको खींच लेंगे बाहर। सो P और हमने बाहर खींच लिया। सही बात है। P और यहाँ पे भी P और ये खींच लिया बाहर। यहाँ पे क्या बचा है, Q बचा है, एंड यहाँ पे निगेशन Q बचा है। सही बात है। क्या यूज़ किया इसको यूज़ कर दिया हमने बाय, यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो इफ वी टेक हियर P और, अगेन बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ, मैंने बोला था आपको पहले भी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर दिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ ही आना है, उसके बाद यही आने का है। सो कर दीजिए ना यूज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। कौन सा लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। और इसके बाद कौन सा आता है, आइडेंटिटी लॉ आएगा। सो P जॉइन फॉल्स, इट इज P इटसेल्फ। ये ट्रू आ गया तो ट्रू हो जाएगा, ये P फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स इसका ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन P। सो राइट डाउन देयर P। सो हियर बाय आइडेंटिटी लॉ। सो अगर हम ठीक से देखेंगे, एंड देयरफॉर P और Q एंड P और निगेशन Q इज इक्विवेलेंट विथ P। ओके, प्रूव कर दिया हमने ये भी। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए आपकी नोटबुक में, रिकॉर्ड कीजिए आपका। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q, इट इज इक्विवेलेंट विथ P और Q। चलिए देखते हैं फिर से एक बार। लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड, you have given here P and Q और negation P and Q और P and negation Q। अभी यहाँ पे देखिए negation Q, सॉरी and Q, यहाँ पे भी and Q। जैसा हमने पहले देखा था उसको खींच लिया था बाहर, याद है। बस इसको भी क्या करो, साइड में खींच लो। सो क्या बचेगा यहाँ पे, सो P और निगेशन ऑफ P। क्या किया हमने, ये Q जो है वो बाहर खींच लिया, एंड Q। सही बात है। क्या किया हमने, ये दोनों टर्म्स में ये एंड Q जो कॉमन दिख रहा था उसको बाहर खींच लिया। यहाँ पे बचा P और यहाँ पे बचा निगेशन P। सही बात है, समझ में आ रहा है। क्या किया हमने, यहाँ पे एंड Q, यहाँ पे भी एंड Q, दोनों कॉमन फैक्टर लग रहे थे तो उसको खींच लिया बाहर, एंड Q। यहाँ पे बचा P, यहाँ पे बचा निगेशन P और ओके। और एज इट इज ज्वाइन विथ P एंड निगेशन Q। ये जो खींचातानी हमने किए, यहाँ पे जो किया है, क्या नाम था इसका, क्या था ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मेंशन तो करना पड़ेगा भाई, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यूज़ कर दिया। सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कौन सा आता है,
it is true and Q, और P and negation of Q। ये ट्रू आ गया यहाँ पे, P और निगेशन P, कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद कौन सा आता है हमें पता है ना, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, एक के बाद एक। उसके बाद कौन सा आता है, आइडेंटिटी लॉ आता है। तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ना, आइडेंटिटी लॉ यूज करना पड़ेगा। सो Q और P एंड निगेशन Q। क्या यूज कर दिया भाई यहाँ पे, हमने यहाँ पे यूज कर दिया आइडेंटिटी लॉ। देखिए फिर से ये तीनों एक साथ आ गए, एक के बाद एक। डिस्ट्रीब्यूटिव आया, उसके बाद सीधा कॉम्प्लीमेंट आया, उसके बाद सीधा। सो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। सो Q और P एंड Q और निगेशन Q, ठीक है। क्या यूज कर दिया फिर से, वी हैव यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगेन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो उसके बाद तो हमें पता ही है क्या यूज करते हैं हम। उसके बाद Q और P एंड ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू, पता था हमें। बाय कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, यूज कर दिया उसको, कॉम्प्लीमेंट लॉ को। उसके बाद अभी यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ, स्टेटमेंट एंड ट्रू। अभी ये ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट का वैल्यू फॉल्स आ गया तो ये फॉल्स, और एंड ट्रू इट इज फॉल्स। सो डिपेंड्स ऑन दिस वन, सो इट इज Q और P। कौन सा लॉ यूज किया यहाँ पे, बाय आइडेंटिटी लॉ अगेन। सो ये चीज़ फिर से एक बार रिपीट हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट एंड आइडेंटिटी लॉ। और इसको क्या कर देंगे, इट इज़ P जॉइन Q। क्या यूज कर दिया, सीक्वेंस चेंज कर दिया। कौन सा लॉ आता है वो, बाय कम्यूटेटिव लॉ। सो दैट इज इक्वल्स टू RHS एंड देयरफॉर वी कैन से हियर P एंड Q, देयरफॉर P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q इट इज इक्विवेलेंट विथ P और Q, जो कि हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। ओके एक और एग्जांपल है वहाँ पे, आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ फॉर होमवर्क। सो इस तरीके से हमने लॉजिक के सभी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, एक्सरसाइज भी पढ़ ली है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हमें एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक, एक ही टॉपिक है स्विचिंग सर्किट्स नाम का, वो स्विचिंग सर्किट्स हमें अगले टॉपिक में पढ़ने का है। तब तक मैं बोल रहा हूँ आपने स्टडी शुरू किया होगा, 4 एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व कर ली है अब तक। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है M पवार, और मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9503796906। अगर कुछ दिक्कत आपको लॉजिक के पार्ट में आती है तो आप रिपीट देख सकते हैं, सभी टेलीकास्ट जो है रिपीट देख सकते हैं। नहीं रिपीट देख के समझ में आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली मी, माई नेम इज़ MM पवार, 9503796906, that is my mobile number. So again I request all of you to like, share and subscribe my channel, send your friends also. So thank you very much. In the next lecture we are going to study switching circuits. Thank you.